Hello students, greetings to you all. Today in this lecture we will discuss about errors of verbs in the sentences having compound subjects. So actually this topic is a little bit confusing. So let's begin. Have a look at these three sentences first. Later on we will take some more sentences. The manager with his subordinates blank space is or are to be present at the venue. Next sentence, the father as well as his sons blank space is are hardworking or are hardworking. He along with his friends has gone to watch the match or have gone to watch the match. Up now, whenever these kinds of sentences are asked, we often commit errors. Many students commit errors. Actually, one thing that you must have noticed here, that in the first sentence, the manager with his subordinates. So there are two subjects here. मैनेजर भी सब्जेक्ट है और सबऑर्डिनेट्स भी. अब इसके अकॉर्डिंग हमें कौन सी वर्ब लगानी है, इज और आर, ये यहां पर हम डिस्कस करेंगे. सो एक्चुअली देर आर सर्टेन रूल्स फॉर यूजिंग वर्ब्स इन कंपाउंड सब्जेक्ट्स. कंपाउंड सब्जेक्ट्स में वर्ब यूज करने के कुछ रूल्स हैं और वो क्या है वो मैं अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय विथ एज वेल एज और अलोंग विथ, इन दीज थ्री सेंटेंसेज यू मस्ट हैव नोटिस्ड वन थिंग कि यहाँ पर जो दो सब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट सेंटेंस में द मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट्स, इसको कनेक्ट किया गया किसकी हेल्प से, विद की हेल्प से. दूसरे सेंटेंस में द फादर और सन्स दे आर कनेक्टेड बाय एज वेल एज से कनेक्ट किया गया है. थर्ड सेंटेंस में ही along with his friends, तो along with के साथ कनेक्ट किया गया है. सो व्हेन वी कनेक्ट टू सब्जेक्ट्स with the help of with as well as or along with, the verb agrees with the first subject. ये जो first subject है इस first subject से ही agree करेगी, irrespective of the facts कि यहाँ subordinates plural है तो हम plural verb use नहीं करेंगे. The manager with his subordinates is to be present at the venue, not are to be present at the venue. are to be present नहीं होगा, is to be present at the venue, because there is a rule. क्योंकि यह दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट किया है हमने विद से या एज वेल एज से. द वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट. तो यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, इसमें मैनेजर है. दूसरे सेंटेंस में क्या है, द फादर है. थर्ड सेंटेंस ही. तीनों में ही सिंगुलर है. सो वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट से ही एग्री करेगी. दैट्स वाई सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड हियर इन ऑल दीज थ्री सेंटेंसेस. द मैनेजर विद हिज सबऑर्डिनेट्स इज टू बी प्रेजेंट एट द वेन्यू. The father as well as his sons is hard working, not are hard working. हम sons के अनुसार नहीं लगाएंगे यहाँ पर. यहाँ किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, the father के अकॉर्डिंग. He along with his friends, तो यहाँ वर्ब friends के along अकॉर्डिंग नहीं होगा, he के अकॉर्डिंग लगाना है. Has gone to watch the match. Imagine if then the same sentence, अगर यहाँ पर हमने दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट किया होता एंड से, द मैनेजर एंड हिज सबऑर्डिनेट्स अगर किया होता, तब क्या होता, तब ये प्लूरल कंसीडर किया जाता, फिर आर होता. क्योंकि यहां पर हमने कनेक्ट किससे किया है, विद एज वेल एज और अलोंग विद. सो राइट डाउन दीज सेंटेंसेस इन योर नोटबुक और राइट डाउन दीज कनेक्टर्स, कि अगर इन कनेक्टर्स के साथ टू सब्जेक्ट्स को कंबाइन किया है, द वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट. जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग एग्री करेगी. आई थिंक it is clear to you, and actually watch it again and again so it will become very much clear. Have a look at some other sentences. Neither Hari nor Suresh are going to Jaipur. Is going to Jaipur or are going to Jaipur क्या लगाना है. Neither the officer nor his subordinates blank space was present at the meeting. Either Rita or Sita has or have taken the ice cream. The farmer or the carpenter often sees or see the elephant in this area. The farmer or the carpenters often see the elephants in this area. क्या difference है, that we will discuss here. So look at the first sentence here, or actually the fourth one. Neither Hari nor Suresh. Two subjects are combined. यहाँ दो subjects को हमने combine किया है किससे, neither nor की help से. So if we connect two subjects with the help of neither nor, either or, the verb agrees with
with the second subject or the subject which is closer to the verb. जो वर्ब एग्री करेगी वो किसके अनुसार होगी, जो सब्जेक्ट वर्ब के पास में, जस्ट अपोजिट टू दैट, जो अभी अभी आपने पढ़ा उसके ठीक अपोजिट है. नाइदर हरी नॉर सुरेश, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ दोनों ही सिंगुलर है, हरी भी सिंगुलर है, सुरेश भी सिंगुलर है. दैट्स वाई सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड. नाइदर हरी नॉर सुरेश इज गोइंग टू जयपुर, क्योंकि दोनों ही सिंगुलर है इसलिए प्रॉब्लम नहीं है. लुक एट दिस नेक्स्ट सेंटेंस. नाइदर the officer nor his subordinates were present at the meeting. Here the verb agrees according to the second subject. यहाँ second subject के according होगी, जबकि आपने यहाँ देखा था with के अनुसार अगर with से connect किया गया है दो subjects को, the verb agrees with the first subject. और अगर neither nor either और सिर्फ और से connect किया गया है, the verb agrees with the second subject. verb second subject के according होगी, जैसा यहाँ पर है इस sentence में. Neither the officer nor his subordinates were present at the meeting. Same here. I think now it is clear to you. Either Rita or Sita. अब दोनों ही सिंगुलर हैं, ये मैंने अभी आपको पहले ही बताया, जिस तरह से इस केस में था neither हरी nor सुरेश. सिमिलरली either Rita और सीता क्या हो जाएगा, has taken the ice cream. The farmer or the carpenter often sees the elephant in this area. So look at here. द फार्मर और द कारपेंटर है, तो दोनों और से जुड़े हुए हैं, लेकिन कारपेंटर क्या है, सिंगुलर है. वर्ब किसको एग्री करेगी, द सेकंड सब्जेक्ट, जो सेकंड सब्जेक्ट विच इज क्लोजर टू द वर्ब, जो वर्ब के क्लोज है उसको एग्री करेगी. जबकि यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ वर्ब किसको एग्री कर रही थी, द फर्स्ट सब्जेक्ट को एग्री कर रही थी. सो द फार्मर और द कारपेंटर ऑफन सीज. इन द नेक्स्ट सेम सेंटेंस, इसमें चेंज क्या किया है, द फार्मर और द कारपेंटर्स, एक को हमने प्लूरल बना दिया, फार्मर तो सिंगुलर ही रखा है, कारपेंटर्स को प्लूरल कर दिया. अब कारपेंटर्स यहाँ पर प्लूरल है, दैट्स वाई द वर्ब क्या हो गई, प्लूरल वर्ब. अगर दो सब्जेक्ट्स को और से जोड़ा गया है और जो सेकंड सब्जेक्ट विच इज क्लोजर टू वर्ब, वर्ब के क्लोज में अगर सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, प्लूरल है तो प्लूरल होगी. यहाँ कारपेंटर था, दैट्स वाई सीज, और यहाँ पर कारपेंटर्स है तो यहाँ शी हो गया. देयर इज वन मोर एक्सेप्शन हियर. ब्रेड एंड बटर इज और आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट. एक्चुअली जब भी हम दो सब्जेक्ट्स को, दो नाउन्स को एंड से जोड़ते हैं, वर्ब इज प्लूरल, वर्ब प्लूरल होती है. जैसे कि इसमें से आप कोई सा सेंटेंस ले लीजिए, द फार्मर एंड द कारपेंटर, तो ये प्लूरल वर्ब आती है, इसमें सी आता है, एंड से जोड़ देने पर प्लूरल होता है. लेकिन यहाँ ये एक्सेप्शनल केस है, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट. तो यहाँ इज क्यों हुआ, ये इसलिए है कि व्हेन टू सब्जेक्ट जॉइन बाय एंड आर ट्रीटेड एज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड टेकन एज ए सिंगल यूनिट. यहाँ पर हम ब्रेड एंड बटर इस तरह का एक सब्जेक्ट है जो सिंगल यूनिट की तरह से लिया गया है, एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पर सिंगल यूनिट की तरह से कंसीडर किया गया है, दैट्स वाई इसको सिंगुलर माना जाता है. अदरवाइज एंड से जुड़ा हुआ जितने भी सब्जेक्ट्स को आप टू और मोर देन टू सब्जेक्ट्स अगर एंड से जोड़ेंगे तो हमेशा वर्ब प्लूरल ही होगी. लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है यहाँ पर, जैसे लाइफ एंड डेथ इज ए साइक्लिक प्रोसेस, या लाइफ एंड डेथ को हमने एक यूनिट माना है. सेम ब्रेड एंड बटर को हमने सिंगल यूनिट माना है, दैट्स वाई इज यूज्ड हियर. ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट. सो हैव ए लुक एट क्विक रिव्यू ऑफ कंपाउंड सब्जेक्ट्स. कि when two subjects are joined by with or as well as और along with, अगर इनसे जुड़े हुए हैं, the verb form agrees with the first subject. verb form ये आपको याद रखना है, keep this fact in your mind that the verb form agrees with the first subject. Neither nor, either or it may be only or. The verb form agrees with the subject closer to the verb. It means the second one. The verb form here agrees with the subject closer to the verb. जो verb की closer है उसको agree करेगा. And on both ends the plural verb form is used except exceptional cases, सिर्फ exceptional cases को छोड़ करके. So here we have taken the examples of compound subjects. Later on in the next video we will take some more examples and more sentences. Thank you for watching. Wish you a very happy learning. Stay tuned.